نحمده ونصلي على رسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا نبينا مولانا محمد المبارك وسلم صلوا علينا صلاة وسلام عليك يا رسول الله دائما صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا جد الحسن والحسين لب جزم میرے نامی شہ بتا آیا لب جزم میرے نامے شہ بتا آیا عمر رفتہ پلٹ آئی کہ مسیحا آیا جس قدر وادی غربت میں چبے تھے کاٹے پھول سب ہو گئے اس وقت مدینہ آیا جو کچھ کہا میں نے تیرا حسن ہو گیا محدود آئیے آپ اور ہم مل کر ایک مرتبہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے مکی و مدری تاجدار باعث کائنات فخر موجودات منشاء فطرت حبیب کوثر نبی محشر افسر الفقہاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں واریانہ عقیدت و مندی کے ساتھ ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف کا ہدیہ پیش کرے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیزان محترم آپ تمام حضرات کو بہت بہت مبارک ہو کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ شروع ہو گیا اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اسی مہینے کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا تو عزیزان محترم آج ہماری تقریر جو عنوان جو ہمارے امام صاحب نے رکھا ہے کہ عظمت سرکار کی عظمت بتائیں کہ سرکار کی عظمت کن کن چیزوں پر ہوئی تو عزیزان محترم دنیا میں ہم آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی مقصد سے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے ایسے ہی ہم جانور تو نہیں کہ آئے چارہ کھائے بڑے ہو گئے اللہ کی راہ میں ذبح ہو کر چلے گئے اگر عبادت ہی کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا فرماتا نماز ہی کے لیے پیدا فرماتا روزے ہی کے لیے پیدا فرماتا زکات دینے کے لیے حج کرنے کے لیے ان ارکانات ہی کے لیے اگر پیدا فرماتا تو اس کے پیدا کرنے سے افضل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے کروڑوں اربوں فرشتے موجود ہیں مگر اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں بھیجا ہے تو ایک دوسرے کا درد سمجھنے کے لیے یہاں پر بھیجا ہے کہ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے 70,000 ملائکہ ایک وقت میں آتے ہیں ایک وقت میں 70,000 فرشتے طواف کعبہ کرتے ہیں اور قیامت کی صبح آ جاتی ہے دوبارہ ان فرشتوں کو موقع نہیں ملتا طواف کرنے کا تو ہمارے لیے خوش نصیبی ہے ہم جب چاہے جا کر آتے ہیں طواف کر لیتے ہیں تو عزیزان محترم دنیا میں ہم آئے ہیں صرف عبادت ہی کے لیے نہیں بلکہ ایک دوسرے کا درد سمجھنے کے لیے اور سامنے والے کا درد ہمیں سمجھنا ہے تو یہ درد سمجھنا آج ہم یہ کہہ رہے ہیں بلکہ عربی محمد عربی دنیا میں آنے سے پہلے ہی یہ سمجھ گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جن پر احسانات تھے وہ امت کی عورتوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان تھے کہ عورتوں کا درد کیا ہے سرکار سمجھتے تھے کہ سرکار دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عورتوں پر کس قدر ظلم کیا جاتا تھا اس زمانے کی جاہلیت اتنی ہے کہ بچی کو جو جتنی تکلیف لے کر مانتا ہے وہ اتنا بڑا شہنشاہ کہلاتا ہے آج حاملہ عورت ہوتی ہے اسے کتنی نازکی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں مگر اس زمانے میں جب حاملہ ہوتی تھی تو چھپ چھپ کر جو ہے دنوں کو گزارتی تھی اگر لڑکی ہوتی تو چھپا دیتی تھی اگر لڑکا ہوتا تو سامنے لاتی تھی اگر گھر والوں کو شوہر کو معلوم ہوتا کہ اگر لڑکی ہوئی ہے تو وہ اس کے گلے پر پاؤں دبا کر کھڈے میں ڈال دیا کرتے تھے آج ہم قبرستان جا کر دیکھتے ہیں
मैयत को कितनी आराम से हम दफन करते हैं, आहिस्ता से उतारते हैं। पैर के तरफ एक आदमी, सराहने एक आदमी, कमर के तरफ कमरबंद बांध कर, रस्सी बांध कर उतारते हैं, कहीं मैयत को तकलीफ ना लगे। मगर उस जमाने की जाहिलियत इतनी थी कि बच्ची को हवा में उठाते थे, हाथ से नली को दबा दिया करते थे और जमीन पर खड्डे के अंदर इसी तरह छोड़ दिया करते थे। इतनी तकलीफ देते थे। सबसे ज्यादा तकलीफ दुनिया पैदा होने से लेकर शायद क़यामत तक जो है औरतों को ही उन अरब के लोगों ने दी थी। ऐसे जाहिलियत के जमाने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। इतनी तकलीफ देते थे कि मां को जो है रस्सी से गले को बांध कर बाजार में ले जाकर बांदी के शक्ल में दे दिया करते थे। औरत का कोई पोजीशन नहीं था, औरत का कोई विकार नहीं था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आने के बाद औरत को सबसे ज्यादा पोजीशन जो है सरकार दिलाए। हर मोड़ पर हर तरह का पोजीशन दिलाए हैं। मां को मां का दर्जा दिलाए हैं, बेटी को बेटी का दर्जा, बीवी को बीवी का दर्जा, बहन को बहन का दर्जा, हर चीज का अपने अपने मुकाम पर जो है सरकार पहुंचाए हैं। उस जमाने में जो बेवा हो जाती थी या मुतल्लका होती थी, उन्हें बड़ी ऐब की नजर से देखा करते थे। बेवा आती तो उसे मुंह पर कालिक लगा देते, गधे पर बिठाकर घुमाते बाजार में। इतनी दर्दनाक जिंदगी औरतों को तकलीफ दिया करते थे। ऐसे माहौल में जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सख्त जवानी में भी जो है अम्मा आयशा, अम्मा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से आपने निकाह किया। आप दोनों तरफ से मुतल्लका थी, आप बेवा भी थी और मुतल्लका भी थी, आपको शौहर भी छोड़ा था। तो आपने सबसे पहले जो है अम्मा खदीजा कुबरा को अपना पोजीशन दिलाया, दुनिया वालों से बता दिया कि बेवा से निकाह करो। जब तक अम्मा थी आपने दूसरे निकाह के बारे में नहीं सोचा, ये पोजीशन आपने जो है दिलाया। उसके बाद अम्मा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को कहा कि ये मेरा कलेजे का टुकड़ा है। साहबा से कहा कि अगर तुम अपनी लड़कियों को अच्छी तरह परवरिश करके पाल पोस के अगर 3 लड़कियों की अगर तुम शादी करते हो तो रब अज़्ज़ा व जल कसम अपने रुबूबियत की खाता है कि तुम पर जन्नत वाजिब हो जाती है। यहां पर बाप अपनी बेटी को अच्छी तरह तरबियत कर कर शादी ब्याह कर दे तो जन्नत वाजिब हो जाती है। पहलू के दो होते हैं, सिक्के के 2 तरफ होते हैं। पहला तरफ अच्छी परवरिश करके उसे शादी कर कर देना जन्नती है, और उसकी परवरिश करे बगैर शादी करके देना और दुनिया में जो है गलती गुनाह करना, जहन्नमी होना, तो ये उसके जो है जहन्नम की अलामत होती है। यानी कि बेटी जन्नत का भी रास्ता और जहन्नम का भी रास्ता। और मां को दर्जा इस कदर दिया कि आप 7 आसमान के ऊपर रहने वाली जन्नत को लाकर मां के कदमों के नीचे डाल दिया। जब लड़की को परवरिश करते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 लोगों को जो है जन्नती कहा कि अपनी बेटी को अच्छी परवरिश करने वाले के लिए जन्नती कहा, अपनी बहन की अच्छी हिफाजत करने वाले के लिए भी कहा, अपनी बीवी की अच्छी देखभाल करने वाले के लिए भी कहा, और अपने बेटे को मां के खदमों के लिए जन्नत है ये भी कहा। तो जो 4 नौजवान जन्नती हो सकते हैं, यकीन रखो यही 4 जवान जहन्नमी भी हो सकते हैं। अगर हम अपनी लड़की को सही तरबियत नहीं दिए, सही परवरिश नहीं दिए, जो अपनी लड़की की वजह से माशरा खराब हो रहा है। बच्ची जब पैदा होकर बड़ी होती है तो बाप की जिम्मेदारी, बड़ी होने के बाद भाई की जिम्मेदारी, शादी के बाद शौहर की जिम्मेदारी, औलाद होने के बाद बेटे की जिम्मेदारी। इतनी महफूज चीजों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को रखा। आज एहसान अगर उम्मत पर है तो सबसे ज्यादा औरतों पर सरकार का एहसान अजीम है। तो इस जमाने में हमसे ज्यादा औरतें जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र बजा लाना चाहिए। आज हमारी इज्जतनाक ख़वातीन, माशरे का आप जायजा लें किस कदर बेपर्दा हो चुकी हैं, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी अच्छी पोजीशन बताई, खदमों में लाकर जन्नत को भी रख दिया। मगर आज माशरे में आजादी के नाम पर
कॉलेज में, स्कूल, दफ्तरों में हम भेज रहे हैं, ये बेहद हमारे लिए जरूरी नहीं है। तो अजीजा ने मोहतरम, तो सबसे ज्यादा हर तरह का पोजीशन वो मिसाल आपने जो है औरत को दिलाया, हत्ता कि अगर 3 लड़कियों की शादी भी कर दे तो जन्नत वाजिब करार दे दिया। एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी उठे, कहा कि या रसूलल्लाह मेरी 2 लड़कियां हैं, तो आपने कहा कि आपके लिए भी जन्नत है। और एक सहाबी रसूल उठे, कहा या रसूलल्लाह मेरी सिर्फ एक ही लड़की है, जाओ आपके लिए भी जन्नत है। तो बात वाज़ेह हो गई, एक लड़की भी क्यों ना हो, अच्छी परवरिश कर उसके मकाम पर हम पहुंचाते हैं तो हमारे लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। वहां से उसकी शौहर की जिम्मेदारी आ जाती है, साहिब औलाद होने के बाद बेटे की जिम्मेदारी आती है। जहां तक हमारा दायरा है, हम जो है औरत को वहां तक संभालना चाहिए। आज हमारी भी माँ है, बहनें हैं, बीवियां हैं, और हम भी जो है किसी माँ के बच्चे हैं। हमारे भी ये जो हुकूक अदा होने चाहिए कि सरकार ने हमें कहां तक औरत को इज्जत देने का पोजीशन अता फरमाया। आप तो दुनिया में तशरीफ लाने से पहले ही आपने माँ का पोजीशन विखार क्या है ये बता दिया था। आप दुनिया में तशरीफ ना लाए, आप माँ के कोख में थे, तभी आपने माँ का इज्जत और मकाम और मर्तबा बता दिया था। तो अजीजा ने मोहतरम, सबसे ज्यादा जो है औरत को ये पोजीशन मिला है। तो इज्जत माफ खवातीन से गुजारिश है कि इज्जत माफ खवातीन, आप पर्दे में रहकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज्यादा शुक्र बजा लाने में आप ही लोगों का हक बनता है। तो अजीजा ने मोहतरम, मैंने कलाम रब्बानी की एक छोटी सी आयत शरीफा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक के तुम्हारे पास आया एक नूर और एक रोशन किताब। तो अजीजा ने मोहतरम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पहले आया, बाद में किताब आई। हमारे सिलसिले के बुजुर्गान दीन का फरमान है, अमल पहले हुआ, किताब बाद में आई। जरा सोचो, पिछले अंबिया अलैहिस्सलाम के जमाने में किताबें पहले आती थी, उसके बाद अमल किया जाता था। किताब आने के बाद शरीयत का अमल किया जाता था। तौरात, ज़बूर, इंजील आई, सहीफे आए, हजारों अंबिया अलैहिस्सलाम पर किताबें नाजिल हुई, किताब आने के बाद अमल किया जाता था। मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुजस्सम ऐसा है, पहले अमल हुआ, बाद में किताब आई। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिंदगी में हमेशा कहा करते थे कि मैं दुनिया में 3 चीजों को पसंद करता हूं। मैं अपनी बेटी आयशा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में देना पसंद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राह में माल खर्च करना पसंद है, और हमेशा जो है सरकार की दीदार करना मुझे पसंद है। साहबा ने पूछा, या अबू बकर सिद्दीक़, आप हमेशा साहबा को, सरकार को देखना पसंद क्यों करते हैं? तो कहा कि मुझे सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक सरकार का दीदार नजर आता है। पूरी कुरान जो है सरकार के मुजस्समे में मुझे नजर आती है। यानी कि सरकार का उठना भी कुरान के मुताबिक, बैठना कुरान के मुताबिक, रुकू, सुजूद, मुराकबा, मुकाशफा, मुआयना, हर अमल कुरान के मुताबिक हुआ। कुरान बाद में आई, अमल पहले हुआ। अल्लाह ने अमल, सरकार के अमल को देखकर कुरान नाज़िल किया कि आप इस तरह जो है अमल किया करो। यानी कि सरकार दुनिया में आने के बाद मां को पोजीशन पहले दिलाया, उसके बाद आयत नाजिल हुई, और सरकार को तकलीफें पहले मिली, उसके बाद आयतें नाजिल हुई। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुई मिनल अत्ताइ वल अमवालि वल अनफुसि वस समराति वल बशिरिस साबिरीन। तो हम अपने खास बंदों को आजमाते हर तरह की तकलीफें देकर, जान की, माल की, औलाद की, हर तरह की तकलीफें, वो सरकार को भी तकलीफें झेलनी पड़ी। तो अजीजा ने मोहतरम, सरकार 40 साल अपनी नबूवत गुजारे, अपना मुंह नहीं खोला, जबकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर, उनकी अम्मा पर, मरियम पर तहमतें लगाई गई कि तुम्हारी औलाद कैसे हुई। तो बवारे में से ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने इतनी छोटे बच्चे को जुबान दे दी, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान नहीं किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जुलेखा अलैहिस्सलाम ने तहमत रखा, तो एक 4-6 माह के बच्चे ने गवाही दी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बेकसूर हैं,
मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं क्या हूं ये 40 साल तक नहीं जाहिर किया। 40 साल के बाद अल्लाह ने खुद वही के जरिए, आयतों के जरिए दुनिया में जीना है तो इस तरह अमल करो। सरकार की पूरी जिंदगी को कुरान में ढाल दिया। तो नूर पहले आया, अमल पहले हुआ, उसके बाद जो है कुरान मजीद नाज़िल हुई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अरकान कुरान मजीद के मुताबिक होती थी। आज दुनिया में जितने गुनाह के काम तो कुरान में हराम करार दे दिए गए, सरकार ने कभी वो गुनाह के काम नहीं किए। अगर किए होते तो उनकी उम्मत में से, उनके सहाबा में से लोग होते, सरकार पहले आप भी ये काम किया करते थे, कुरान आने के बाद आपने ये काम छोड़ा। मगर सरकार ने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया। सरकार को मालूम था कि 40 साल के बाद कलाम में क्या लिखा जाएगा, उसी पर आपने अमल किया। ये सरकार का मोजिज़ा अजीम है। ये सरकार का बहुत बड़ा मोजिज़ा है कि अल्लाह दुनिया में कुरान नाज़िल करेगा, किन आयतों में किन चीजों को हराम करार देगा, किन चीजों को जायज करार दे देगा। 40 साल तक आपने अमल किया, उसके बाद कुरान नाज़िल हुआ। तो कुरान बाद में आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पहले से आया। तो अजीजा ने मोहतरम, सरकार दुनिया में आने से पहले के ये हालात जिंदगी हुआ थी कि इस तरह के जुल्म सितम चलते थे। सरकार को बातिनी तौर पर मालूम था, ये यकीन जाने हमारे बुजुर्गान दीन का कौल है कि दुनिया क़यामत तक आने वाली दुनिया में क्या क्या होगा हमारे सरकार जानते हैं। यह हमारा असलियों का अकीदा है। आजकल के अकीदों की हमें कोई जरूरत नहीं, हमें हमारा अकीदा बस है। आज के जमाने में आप बेहतर जानते हैं, आपने भी कई बार बोला होगा, कोई साहूकार होगा तो उसके घर के लिए होगा, हमारे घर के लिए थोड़ी होगा। हम खुद के घर के लिए मालिक है। तो हम सुन्नी हजरात के लिए जो अकीदा हमारे बुजुर्गान दीन ने हमें बता कर गया है वो हमारे लिए काफी है। दूसरों के अकीदों से हमें कोई मतलब नहीं। आज हमारे औलादों के हम बर्थडे मना रहे हैं, हमारे बीवी बच्चों की एनिवर्सरी मना रहे हैं, हम खाना खिलाने का बहाना ढूंढ रहे हैं। अरे इतना अजीम महीना आ गया है, सरकार के नाम पर इस जमाने में हमें जानों की कुर्बानी की जरूरत नहीं, बस हमारे वक्त की और अमल की जरूरत है। उस जमाने में सरों को काटने के लिए तैयार हो जाते थे, मगर उसकी जरूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तौर तरीकों पर जिंदगी पर अमल करने के लिए हमारे लिए काफी है। तो अजीजा ने मोहतरम, आज इस मस्जिद में सबसे पहले पते की बात हमें यह मालूम हो गई कि सरकार ने अमल पहले किया, उसके बाद कुरान नाज़िल हुआ। यह सरकार की अजमत है, यह सरकार की शान है, ये सरकार का विकार है। अल्लाह ताला यहां तक कहता है, अगर मेरे मुस्तफा को तुम्हारे दरमियान में भेजना ना होता तो मैं अपनी रुबूबियत को भी जाहिर ना करता। तो अजीजा ने मोहतरम, हमारे लिए बेहद जरूरी है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करनी चाहिए। अपने जान, माल, औलाद, हर चीज से ज्यादा अगर हम मोहब्बत रखते हैं तब जाकर हम जो है मुकम्मल ईमान वाले होते हैं। आज हमारा माशरे में, मैं सबसे पहले बताया कि इंसान एक दूसरे के दर्द के लिए दुनिया में भेजा गया है, तो दर्द समझने वाली शख्सियतों में सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो उम्मत की औरतों का दर्द आपने समझा था। ये तो दुनिया में आने के बाद के वाकयात थे, दुनिया में आने के बाद के मामूलात थे, मगर आप दुनिया में आने से पहले ही अपनी माँ को विकार पोजीशन दिला दिया कि माँ जाकर गिलाफे काबा पकड़कर, जब अबरा बादशाह काबा गिराने की गर्ज से आया, अब्दुल मुतल्लिब के ऊंट चुरा कर ले गया। अब्दुल मुतल्लिब ने जाकर ऊंटों की सवाल किया कि मेरे ऊंट वापस कर दो। तो अबरा ने कहा, मैंने सोचा कि तुम काबे की फिक्र से आए हो, तुम काबे को बचाने के लिए आए हो, मैं हाथियों पर आया हूं काबा गिराने के लिए। तो अब्दुल मुतल्लिब ने कहा, ऊंट मेरे हैं, मैं फिक्र करूंगा, काबा खुदा का है, खुदा फिक्र करेगा। तो उस वक्त आप घर आते हैं, घर आकर अम्मा से कहते हैं, बीबी आमिना से कहते हैं, अरे बेटी चल जाते हैं, कसम है रब्बुल इज्जत की, तेरी सोच में जब से ही बच्चा आया है मेरा घर रोशन हो चुका है, घर में इतनी खुशबू अच्छी आ रही है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, तू चल इस बच्चे के सदके में हम आज काबे को बचाएंगे।
तो आप जो है काबे के पास जाकर गिलाफ काबा पकड़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करती हैं कि अल्लाह मेरे इस कोट में पल रहे बच्चे के सर से तुफेल में जो है तो इस काबे को बचा ले। तो काबा बच गया। और यहां तक के आप जो है अपनी दूध पिलाई हुई दाई हालिमा को भी इतना पोजीशन दिया, बूढ़ी औरत को इतना पोजीशन दिखा दिया। एक बूढ़ी औरत चलती हुई आ रही है, सरकार जाकर अपने कान उस बूढ़ी औरत के होठों के करीब ले जाकर सुन रहे हैं। साहबा पूछते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ताज़ीम के लिए हम खड़े हो जाते हैं, आप जब बैठते हैं हम कोई नहीं बैठते, हम खड़े रहते हैं जब तक का आपका हुक्म ना हो। मगर वो बूढ़ी औरत आती है, आप काली कमली बिछाकर अपने कानों को वहां ले जाकर सुन रहे हैं। गोया के दूर से देखो तो ऐसा मालूम होता है कोई साहिल अपनी मालकिन से कुछ सवाल कर रहा हो। तो आपने कहा कि ये मेरी दूध पिलाई हुई दाई हलीमा, यानी दूध पिलाई हुई दाई हलीमा को भी आपने विखार दिया, पोजीशन दिया। तो अजीजा ने मोहतरम, आज हमारे लिए बेहद जरूरी है कि हम अपनी इज्जत माफ खवातीन से गुजारिश करें कि सबसे ज्यादा तुम जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र अदा करो। तो अजीजा ने मोहतरम, हमारे लिए इस जमाने में बेहद जरूरी है कि आज हम माशरे का जायजा लेकर अपनी जिंदगियों को ढालना चाहिए। आज हम जमहूरी हुकूमत में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। यकीन जानो, अगर हम शरीयत मुतहरा की पाबंदी करते हैं हमें किसी किस्म की आफत नहीं आएगी, बल्कि हम दुनिया और आखिरत में कामयाब होंगे। बल्कि हम ये दुनिया के पीछे लगे हुए हैं, जबकि वाज़ेह तौर पर इमाम साहब कहते हैं ये दुनिया काफिरों की जन्नत है, मुसलमानों के लिए कैद खाना है। फिर भी इसी कैद खाने को सजाने के लिए अपनी जिंदगियों को सर्फ कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। ये हमारे लिए क़यामत तक की जिंदगी नहीं, 50-60 साल की जिंदगी है। अगर हम करोड़ों रुपए भी कमाकर अपनी औलाद को छोड़कर जाते हैं, किसे यकीन है कि हमारी औलाद हमारे इसाले साहब के लिए 1 करोड़ रुपए को खर्च करेगी? नहीं करेगी। जब हमारे हाथ में हजारों लाखों करोड़ों रुपए हैं, हम खुद अपनी आखिरत के लिए खर्च नहीं कर रहे हैं, तो हमारी औलाद क्या खाक हमारे लिए खर्च करेगी? यकीन जानो, आज हमारे हाथ में जेब में 500 रुपए की नोट है, हम 500 खैरात करने का हमारा दिल नहीं है। मरने के बाद हमारी औलाद क्या 100 रुपये हमारे लिए खर्च करेगी? नहीं करेगी। क्या तुमने तुम्हारे बाप के लिए खर्च किया था? नहीं किया था। आज यहां और कितने लोग करोड़पति होंगे, हजारपति होंगे, शौकार होंगे, अमीर होंगे, यकीन जानो कि अपने वालिदैन पर कितना खर्च कर रहे हैं। अगर आपने अपने वालिदैन मरहूमीन के लिए खर्च किया है तो यकीन जानो कल मरने के बाद तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे लिए खर्च करेगी। अगर तुमने खुद अपने वालिदैन के लिए अपने लिए कुछ नहीं करा, यकीन जानो कल के दिन आपकी औलाद भी आपके लिए कुछ नहीं करेगी। तो ये दुनिया जो है मुर्दार है। ये दुनिया की तलब हमें नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला ने हमें जो है आलम अरवाह से आलम बशरियत में भेजा है। ये हमारी दूसरी जिंदगी है, आलम बरज़ख की एक जिंदगी है, आलम आखिरत की एक जिंदगी है। हमें और भी मरहलों को तय करना है। वहां की जिंदगी हमारी अच्छी लगनी चाहिए। वहां की जिंदगी को अगर हम बेहतर बनाना चाहें तो इस जमाने में इस जिंदगी को हम जो है बेहतर बना लेंगे तो आने वाली जिंदगी हमारे लिए अच्छी होगी। तो आज हम इस जमाने में शरीयत मुतहरा की पाबंदी कर अपने आप को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तौर तरीकों पर अमल करते हैं तो आने वाली जिंदगी हमारे लिए बहुत अच्छी होगी। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए तौर तरीकों पर और शरीयत की पाबंदी करने पर तौफीक अता फरमाए। हमारी इज्जत माफ ख़वातीन अपनी अज़मतों की हिफाजत खुद से करने की उन्हें नेक तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्ला बलाग व आखिर दावाना तो 20 मिनट बोलना होगा, तो 10 मिनट बोलना होगा, 10 मिनट मैं देखना क्या